जिन्होंने हमने जीएसटी का चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 जीएसटी। इसमें एक्सरसाइज 1 स्टार्ट की थी। ए और बी हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसके बाद हम करते हैं सी। द क्वेश्चन इज the question is the GST of an article is reduced from 12% to 5%, and due to this the price paid for the article cut down by 14 rupees. By rupees 14. The original price of the article is. You have to find out the original price of the article. Article is, there the options are there. Number 1 is 50 rupees, 2 is 98 rupees, 98 rupees, 3 is 100 rupees, and the fourth is 200 rupees. Did you understand the question, Chivan? GST of the article is reduced from 12% to 5%. GST कम किया गया है, तो उसकी वजह से जो टोटल अमाउंट है जो पे करना है वो 40 आर्टिकल का पैसा जो है 14 रुपीज कम हो गया। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा? सो कैसे करेंगे हम? जीएसटी रिड्यूस टू 12% टू 5%. 12% to 5%. So the do 5%. The reduction is 7%. Suppose करेंगे हम, let the original price is X. Suppose it is X. Now how we calculate it? See, 7% of X is 14 rupees. So 7 is what? 7 next. 7 upon 100. 7 upon 100 into X is equal to 7 upon 100 into X is equal to 14. So X will come to 3 into X is equal to 14. Then X is equal to 14 upon 14 upon 14 into 14 into 100 upon 7.
So this will got 7 ones are 7, 7 twos are 14. So you get the answer will come to x is equal to 200. This is the option. Option 4. The answer is option 4. 200 rupees. Option 4. We'll go to the next question. Next question. This we have done C. Then D. D is what? D is a dealer. A dealer in Rajasthan supplies goods and services to a dealer in Punjab. If the rate of GST, the rate of GST is 28%, then the rate of SGST is, the option are given. Number 1 is 28%, number 2 is 14%, two is 14%, 3 is 0%, 4th is none of this. So what will be the answer? Here, you have to understand, see here, the goods are supplying from the Rajasthan to Punjab. Rajasthan to Punjab, that is what? That is the interstate. So here, the SGST and CGST would be 0%. So the option will be the option 3rd, option 3. That is 0%. क्योंकि इंटरस्टेट दे रहा है ना हम, और एसजीएसटी पूछ रहा है. इंटरस्टेट में एसजीएसटी और सीजीएसटी 0% होता है. इंटरस्टेट एसजीएसटी एंड सीजीएसटी 0% होता है. इज 0%. ओके. इन द इंट्रा एसजीएसटी और सीजीएसटी कहाँ लगता है? जहां पर इंटरस्टेट विद इन द सेम स्टेट लगता है. You go to the next question. Next question, C, D we have completed. Now E. Question is, in case of interstate of goods or services, if GST rate is 18%, then option 1 is IGST is 9%, option 2 SGST
Option 3, GST is 9%. Option 4, GST is 9%. Number 3, CGST. The GST is 9%. Next, number 4, IGST is 18%. So what will be the option here? The correct answer would be the fourth. Option 4. Why option 4? This is the interstate. Interstate में option 4, that is IGST 18%. इंटरस्टेट में क्या होता है? इंटरस्टेट में आपको आईजीएसटी लगता है, तो 18% अगर जीएसटी रेट है तो आईजीएसटी कितना होगा? पूरा जीएसटी आईजीएसटी जो जीएसटी रेट जितना भी है वो 18% आईजीएसटी लगेगा इंटरस्टेट के केस में. ओके, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. F. The question is the marked price. I'll write in a short. The marked price of an article is 1375. If the CGST is charged at the rate of 4%, then the price of article including GST is the options are given here. First option is 55, one is 155 rupees 55. Second, 110. Third, 1430. And then fourth, 1485. Fourth is 1485. 1485. चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. हमें मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है? मार्क प्राइस है 1375. ओके, जीएसटी
and the CGST is given. CGST is 4%. तो जितना CGST होगा उतना ही SGST भी होगा. SGST भी 4% होगा. ठीक है. And now we find out the GST. हम देखेंगे इस पे कितना होता है. तो उसका GST आएगा 1375 into 8%. कि GST और SGST दोनों का मिला देंगे तो टोटल 8% हो जाएगा. दैट मीन्स अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 1375 into 8 upon 100 तो 2 5 10 0 और उसको काटते हैं 2 5 से काटते हैं 5. अच्छा 2 4 8 फिर 5 से काटते हैं तो हमको आता है it comes to 275 into 4 divided by 110. 275 into 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1100 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 that comes to that is equal to 110 आंसर आता है. ये जो है अभी हमको क्या बोल रहे हैं प्राइस ऑफ द आर्टिकल पूछ रहा है यानी कि एसपी कितना होगा उसका. तो एसपी हम कैसे मालूम करेंगे. एसपी के लिए हमें क्या करना है. एसपी इज व्हाट. एसपी इज द मार्क प्राइस. यहाँ डिस्काउंट नहीं दिया है. मार्क प्राइस प्लस जीएसटी. प्लस जीएसटी प्लस जीएसटी कितना हो जाएगा ये. मार्क प्राइस इज 1375 प्लस 110 1375 plus 110. It comes to how much? दोनों को हम ऐड करते हैं. 110 दोनों को जब हम ऐड करते हैं प्लस 110 it comes to 1485. It is equal to 1485. इसमें ऑप्शन क्या बता रहा है. ऑप्शन है ऑप्शन 4 1485. इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा. ऑप्शन 4 1485 इसका करेक्ट आंसर. अब ई एफ हो गया हमारा. अब हम करते हैं जी. जी में क्या करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी. ठीक है. क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल. The mark price of the article is rupees 200. 2000 sorry. 2000. The GST 2000. The GST 2000. The GST on the
on the article is 12%. And discount is rupees 500. The total amount to be paid is the total amount to be paid is the first option is 2800. Second option second option is 1680. The third option is 1370. Fourth option is 1740. कैसे सॉल्व करेंगे सर? हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है और हमें जीएसटी दिया है, तो पहले हम इसका डिस्काउंटेड प्राइस निकालेंगे. आर्टिकल डिस्काउंट दिया हुआ है एंड डिस्काउंट 500 रुपीज का डिस्काउंट दिया है. जीएसटी 12% एंड डिस्काउंट इज 500 रुपीज. तो पहले हम डिस्काउंटेड प्राइस निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? See, the mark price is 2000. Mark price is मार्क प्राइस मैंने दिया है 2000. नेक्स्ट हमें दिया है जीएसटी. जीएसटी is 12%. Next, discount price is 500 rupees. तो हम क्या करेंगे? What we are going to do? हम डिस्काउंटेड प्राइस और एसपी मालूम करेंगे. ये डिस्काउंट दिया हुआ है. डिस्काउंट, दिस इज द डिस्काउंट इज गिवन 500 रुपीज. अब हम मालूम करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस. वी विल फाइंड आउट द डिस्काउंटेड प्राइस और एसपी. एसपी क्या हो जाएगा हमारा? 2000 minus 500, that comes to 1500. 1500 ये हमारा एसपी आ गया. इसके बाद हमें फाइंड आउट कर जीएसटी दिया हुआ है 12%. सो जीएसटी इज 12%. जीएसटी is 1500 into 12 upon 100. To 12 upon 100 into 12 अपॉन 100. ये उसको कैलकुलेशन करेंगे हम. 0 कट गए हैं तो 15 into 12 बचा. 15 into 12 इट कम्स टू हाउ मच? कैसे आता है हमारा? 15 into 12 that is equal to 180. टोटल अमाउंट
क्या होगा, जो पे करना है टोटल अमाउंट, वो क्या होगा, टोटल अमाउंट वुड बी is equal to SP plus GST. ये आ जाता है जैसे होता है हमारा 1500 plus 180, that is equal to 1680. 1680, that means option 2. One six eight zero 80. That is equal to 1680. This is option. This is option 2. The answer is option 2. Second option is correct. 1680. अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने अभी खत्म किया है ABCDEFG। दूसरे बार हम जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट में करते हैं। इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।